السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک کے کرشمے کا ایک ایسا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ سبھی دوستوں کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ بھی مانتے ہو کہ قرآن پاک میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں اور مہربانی کر کے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو، اس پوری دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے، اس دنیا میں جتنے بھی سارے مسئلے موجود ہیں، ان سب کا حل قرآن پاک میں موجود ہے۔ دنیا میں قرآن پاک سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر، سائنس، سب کچھ ہے قرآن پاک کے پیچھے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب قرآن پاک کو اس زمین پر اتارا تو اس کائنات کے سارے مسئلے کو سلجھانے کا طریقہ بھی قرآن پاک میں عطا فرما دیا۔ قرآن پاک کا صحیح علم رکھنے والا قرآن پاک سے ہر مشکل سے مشکل مسئلے کا حل پا لیتا ہے۔ دوستو، امریکہ کے شکاگو ایک ہاسپٹل میں ایک عجیب سا مسئلہ الجھ گیا۔ تو دیکھیے کہ کس طرح سے اس مشکل مسئلے کو قرآن پاک کی ایک آیت نے ایک چٹکی میں سلجھا دیا، جس کو دیکھ کر ڈاکٹر ہی نہیں، وہاں کھڑے تمام لوگوں نے وہیں پر کھڑے کھڑے اسلام قبول کر لیا اور سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ دوستو، دراصل ہوا یہ، امریکہ کے شکاگو ہاسپٹل میں 2 ڈیلیوری کے کیس دراصل ایک ساتھ آ گئے، جس میں سے ایک عورت کو لڑکا پیدا ہوا اور دوسری عورت کو لڑکی پیدا ہوئی۔ اس ہاسپٹل کا یہ نظام تھا، مطلب کہ یہ سسٹم تھا کہ بچوں کی پیدائش کے بعد بچوں کے کلائی پر ان کے ماں کے نام کا ایک اسٹیکر لگا دیا جاتا تھا۔ لیکن دوستو، اس روز ہوا یہ، جو نرس وہاں پر کام کر رہی تھی وہاں جلد بازی میں تھی اور ان بچوں کے کلائی پر اسٹیکر لگانا بھول گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ دونوں بچے مکس ہو گئے۔ اب یہ اندازہ لگانا مشکل ہو پا رہا تھا کہ ان میں سے بیٹا کس عورت کا ہے اور بیٹی کس عورت کی ہے۔ اس مسئلے کو دیکھ کر ہاسپٹل کے تمام ڈاکٹر حیران اور پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے یہ مسئلے کا حل کیسے سلجھایا جائے۔ انہیں اس کا کوئی آسان طریقہ سوچ رہا تھا، اسی لیے وہ پاس میں ہی ایک دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے جو عراق کے رہنے والے مسلم ڈاکٹر تھا۔ وہ ڈاکٹر اس مسلم ڈاکٹر کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب، تم تو کہتے تھے کہ قرآن پاک میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اب ہمیں تمہیں ہی بتاؤ کہ ہمارے ہاسپٹل کا یہ مسئلہ کیسے سلجھے گا۔ یہ سن کر عراق کا وہ ڈاکٹر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، بے شک قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے اور میں آپ کے اس مسئلے کا حل بھی ضرور بتاؤں گا، لیکن اس کے لیے مجھے تھوڑا اور وقت چاہیے۔ دوستوں، اس کے بعد وہ عراق کا ڈاکٹر بڑے بڑے عالموں سے ملا اور اس مسئلے کا ذکر کیا، تو اب وہی بتائیں کہ قرآن پاک میں اس مسئلے کا کیا حل ہے۔
उन आलिमों ने डॉक्टरों की वो बात सुनी, फिर कहा कि बेशक कुरान पाक में इसका भी हल मौजूद है, और कहने लगे कि कुरान पाक की सूरह यूनुस की एक आयत है जिस पर गौर करने पर हमें इस मसले का हल मिल जाता है, और उस आयत का तर्जुमा ये है कि एक मर्द की हिस्सेदारी दो औरतों के बराबर होती है, यानी कि लड़के की माँ का दूध लड़की की माँ के दूध से 2 गुना होता है। और साथ में उन आलिमों ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का एक वाक़या भी बयान किया, और आलिमों ने बताया कि एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में 2 औरतों ने भी एक साथ बच्चे जने। रात काफ़ी अंधेरी थी। उनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ तो एक औरत को लड़की। अंधेरा होने की वजह से उनको ये मालूम ना चल सका कि कौन सा बच्चा किस औरत का है। अंधेरे की वजह से उन दोनों औरतों में झगड़ा होने लगा। वो दोनों औरतें कहने लगी कि बेटा उसका मसला बहुत ज़्यादा उलझ गया था। दोस्तों, आखिरकार दोनों औरतों को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में पेश किया गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने दोनों औरतें कहने लगी कि लड़के की माँ मैं हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दोनों औरतों की बातों को सुना और उसके बाद फरमाया कि तुम अपना दूध छातियों से निकाल कर मेरे पास एक बर्तन में लाओ। चुनांचे उसके बाद वो दोनों औरतें गईं और अपना अपना दूध निकाल कर आईं। आप हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों औरतों के दूध को तौला, यानी कि उनका ओजन किया, तो आपने देखा कि एक औरत का दूध दूसरी औरत के मुकाबले 2 गुना पाया गया। तो ये देखकर आपने फरमाया कि जिस औरत का दूध भारी है, यानी जिसका दूध ओजनी है, लड़का उसी औरत का है। ये फैसला सुनकर लोगों ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि आपने मसला चुटकी में ही कैसे हल किया। तो आप फरमाए कि कुरान पाक में इरशाद है कि उस मर्द को हर चीज़ में फजीलत दी हुई है, यहाँ तक कि गिज़ा में भी एक मर्द की हिस्सेदारी एक औरत की निस्बत डबल होती है। बस इसी हकीकत के पेशे नज़र मैंने सोचा कि जिस औरत का दूध ओजनी होगा वही बेटे की माँ होगी, और वही फैसला मैंने सुनाया है। दोस्तों, आलिमों के इन्हीं बातों को सुनने के बाद इराक का वह डॉक्टर उसी शिकागो हॉस्पिटल में वापस गया और उन डॉक्टरों को कुरान पाक की इसी आयत के बारे में बताया और उसका मतलब भी समझाया। और इराक के डॉक्टर ने कहा कि कुरान पाक के हिसाब से औरतों के दूध का ओजन किया जाए, यानी कि इनको तौला जाए। जिसका दूध ओजनी होगा बेटा उसी औरत का होगा। लिहाजा उसके बाद उन दोनों औरतों के दूध का ओजन किया गया तो देखा गया पहली औरत के मुकाबले
दूसरी औरत के दूध का वजन 2 गुना है और उसमें विटामिन ग्लूकोज की मात्रा भी पहले औरत के मुकाबले 2 गुनी पाई गई है। तो दोस्तों, अब ये साबित हो चुका था कि लड़के की माँ कौन सी है और लड़की की माँ कौन सी है। यानी अब बेटा और बेटी का फैसला हो चुका था। इराक के उस डॉक्टर ने अमेरिकी डॉक्टरों को बताया कि हमें कुरान पाक कहता है एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है। और यहाँ तक कि गिजा में भी दोस्तों, ये देखकर शिकागो के हॉस्पिटल के डॉक्टर को ये समझ में आ चुका था कि साइंस और डॉक्टर कुरान पाक के बहुत पीछे हैं। यानी कुरान पाक में सारी दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है। अब दोस्तों, वो डॉक्टर इस्लाम में दाखिल होने के लिए उतावले होने लगे, मगर अभी भी उनके दिलों में कुछ चल रहा था जिसके लिए वो बच्चे और उसके बाप का डीएनए टेस्ट करवाना चाहते थे। दोस्तों, उसके बाद उन डॉक्टरों ने उस लड़के का और उसके बाप का सैंपल लेकर दोनों का डीएनए टेस्ट किया और उसकी जो रिपोर्ट आई वह देखकर उन डॉक्टरों के भी होश उड़ गए, क्योंकि बाप और बेटे का डीएनए सेम था। और जैसा कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है वैसा ही हुआ। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखना। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करे। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को दिल खोलकर शेयर करें और लोगों को बताएं कि कुरान कितना सच्चा है और साइंस और डॉक्टरों से भी बहुत आगे है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।